Okay. So, good evening, everyone. In previous Good lecture, I had evening, sir. good evening. In previous lecture, I had taken entropy, second law of thermodynamic, and on that basis, how to decide the spontaneity of the process. जैसा मैंने बताया था आपको, if delta S total is greater than 0, then process is what? Spontaneous, means positive. Then process is what? Spontaneous. Huh? If delta S total less than 0, it means what? Negative. Then process non-spontaneous. Huh? And if delta S total equal to 0, then process, right, is at equilibrium. So here scientists are more aware about this surrounding energy, right? Surrounding energy means what? See this. As we know that delta S total means what? Delta S of system plus delta S of surrounding. And delta S of surrounding means what? What amount of heat evolve at what temperature? Means we can write here delta S. मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, Q reverse upon T. ये तो बताया था मैंने आपको. So on that basis we can find out this delta S surrounding और system का दिया रहेगा, then we can find out the delta S total, and if delta S total is positive, then our process is what? Spontaneous. Negative non-spontaneous. 0 means at equilibrium. But ये भी complete information नहीं दे पाया, right? Complete information about the spontaneity is not given by this delta S. कुछ ऐसे प्रोसेस थे जिसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है बट फिर भी वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, या निगेटिव है बट वो स्पॉन्टेनियस. यहाँ पे कुछ कुछ कहीं कहीं पे वेरिएशन आ गया. सो उसके लिए भी एक नए साइंटिस्ट आ गए, एंड हिज नेम इज व्हाट? गिब्स. So now we discuss about the Gibbs energy. It is represented by capital G, Gibbs. और गिब्स एनर्जी के बाद इन्होंने मीन्स एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस. अभी तक मैंने स्पॉन्टेनिटी किसके बेसिस पे डिसाइड किया? डेल्टा एच के बेसिस पे, डेल्टा एस के बेसिस पे. अब यहाँ पे डेल्टा जी, और तीनों को मिलाकर के एक फॉर्मूला आ गया जो कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन देगा विच प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड विच वन इज द नॉन स्पॉन्टेनियस. So look at here. Okay. So here spontaneous and non-spontaneous information. देखिए कैसे देते हैं. So according to the Gibbs energy definition, capital G is equal to H minus T into S, where G is what? Gibbs energy. H is what? Enthalpy. S is what? Entropy. T is what? Temperature. ये सबको मिला के फॉर्मूला दिया गया, राइट ना. ऑन दैट फॉर्मूला वी कैन डिसाइड विच वन इज द स्पॉन्टेनियस, विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस. कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको डेफिनेशन.
Now one important thing, what will be the change in Gibbs energy? According to this definition, we can say that change in the Gibbs energy is what? Change in Gibbs energy. चलिए देखते हैं गिब्स एनर्जी का चेंज क्या होगा. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस. ये फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच minus T into delta S. This formula change in Gibbs energy, and change in Gibbs energy, see this, delta H is what? State function. Delta S is what? State function. Therefore, delta G is also a state function. So this is also a state function which depend upon initial and final state. अब जरा देखो गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी को कैसे हम लोग कोरिलेट करते हैं. So next important part is what? Gibbs energy and spontaneity. Gibbs energy and spontaneity. Gibbs energy and spontaneity. देखो बेटा कैसे हो रहा है यहाँ पे. Okay. So as we know that formula delta S total is equal to delta S system plus delta S surrounding. सिस्टम को बस डेल्टा एस लिखेंगे. हाँ, वी कैन ऐड दिस डेल्टा एस ओनली. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आएगा जरा देखना ध्यान से, मेरी बात को समझना. ठीक है, where delta S system can write delta S. Okay. Now if delta S is the enthalpy change accompanying a reaction, the enthalpy change of the surrounding is minus delta H. ठीक है, so on that basis we can say that delta S surrounding is equal to minus delta H upon T. अब डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह पे ये हमने सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे. At this place we substitute minus delta H upon T. Then what will get here? So therefore delta S total is equal to delta S minus delta H upon T. अभी यहाँ पे डिवाइड बाई 1 करके मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा कि एलसीएम ले लिया, ये क्या आ जाएगा डेल्टा एस टी आ जाएगा माइनस डेल्टा एच आ गया, और इस टी को यहाँ पे ले लेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा अपने पास इक्वेशन, क्या मिलेगा, देयरफॉर डेल्टा एस टोटल टी इंटू डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू व्हाट, टी इंटू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच. ये मिल गया. अगर मैं इसको अपोजिट कर देता हूं, राइट, तो क्या मिलेगा अपने को,
माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा अपने को, देखो यहाँ पे डेल्टा एच, ये जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस टोटल, यही है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था। अब इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा जी, therefore we can write here delta g is equal to minus t into delta s, ये हो गया फॉर्मूला। तो डेल्टा एस अगर निगेटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर if delta s total is more than 0, then delta g will what, less than 0, and if delta s total is less than 0, then delta g is what, more than 0. So on that basis we can say that therefore conclusion क्या निकलता है, if delta g is less than 0 means negative, then our process will be what, spontaneous. And if delta g more than 0 positive, then process non-spontaneous. And if delta g is equal to 0, then process at equilibrium. ये कंक्लूजन निकल गया। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई सबको? यस। गुड, नोट डाउन करो, इसके बाद एक और डेरिवेशन और खत्म ये चैप्टर से। डन? ओके, देखो बेटा यहाँ नेक्स्ट है गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स फंक्शन and equilibrium constant. Equilibrium constant, ठीक है, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए क्या होगा तो कैसे होता है। So Gibbs energy change for chemical reaction
इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, राइट, वेयर delta G not is equal to what? Standard Gibbs energy. Gibbs energy change delta G is equal to what? Gibbs energy change right, where Q is what? Reaction coefficient, huh? Coefficient, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे ठीक है। एटलीस्ट इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से ले सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Before reaching equilibrium, when we consider this reversible reaction, then we get what? Reaction coefficient. जैसे एग्जांपल देखो, if I'm taking this reaction, जरा समझो यहाँ पे A plus B give what? C plus D. So delta G is equal to what? RT ln QC, राइट ना। अब देखो ये QC क्या होता है, QC is equal to what? Concentration of C raised to power C, concentration of D raised to power D upon concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B, ये प्रोसेस। इज इट क्लियर? इसी को तुम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर, राइट। सो देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन C concentration C, D concentration raised to D, A concentration raised to power A, B concentration raised to power B, ठीक है। In gaseous equation, QC replaced by QP। QC को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा? QP से, है? और वहां पे पार्शियल प्रेशर, तो QP इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर गैसियस इक्वेशन है तो ये हम लोग यूज करेंगे, और ऐसा इक्वेशन है तो ये यूज करेंगे। आप लोग नोट डाउन करो इसको। इसी को हमको केसी और क्यूपी से हम लोग केपी से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। दैट होल थिंग विल बी व्हाट? इक्वल टू व्हाट? केपी। और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है?
So this is what Kc and this is what Kp. यहाँ पे लिख सकते हैं ना, therefore डेल्टा G is equal to डेल्टा G नॉट, राइट? या इसको ऐसा लिखेंगे, देखो यहाँ पे, पहले ये आप लिख लो, पहले मैं समझाता हूँ आपको। देखो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। मैंने लिख के दिया यहाँ पे, अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे यूज करूंगा तो दैट बिकम व्हाट, जीरो। तो देयरफॉर अब ये फॉर्मूला कैसा लिखा जा सकता है, डेल्टा G अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT-ln। अब QC की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, KC। अच्छा, ln की वैल्यू क्या होती है, 2.303। So therefore we can write here delta G naught is equal to minus 2.303, right? RT log to the base 10 KC। ये फॉर्मूला आपका आ गया फाइनली फॉर कैलकुलेशन। और यहीं पे हम लोग KP भी लिख सकते हैं फॉर द गैसियस इक्वेशन, KP, सॉरी मैं अलग से लिखता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड डेल्टा G नॉट minus 2.303 RT log to the base 10 KP। नोट डाउन करो। एक बड़ा ही प्यारा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड देखते हैं हम लोग। पहले ये कैलकुलेट कर लो, लिख लो, एक साथ लिख लेते हैं इसको। गिब्स एनर्जी का पूरा कंक्लूजन है। I've done। चलो प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। देखो, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल। हाँ, टोटल एंड state whether reaction is reaction is
spontaneous or non-spontaneous. Non-spontaneous at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे देखिए, ये दिया है रिएक्शन HGS। इसके फिजिकल स्टेट वगैरह लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस O2 gas will give H3 liquid plus HO2 gas. Delta H not equal to minus 238.6 kilojoule. Delta S not equal to plus 36.7 joule per Kelvin. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ये किसका दिया है बेटा? सिस्टम का दिया है। डेल्टा एस नॉट मीन्स कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स व्हाट? सिस्टम। डेल्टा एच दिया है और टेम्परेचर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। यही तो था फॉर्मूला, भी मैंने बताया था आपको। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो क्या वैल्यू दिया यहाँ पे? 238.6 अपॉन टेम्परेचर यहाँ पे कैसा है? 298 केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो वी गेट व्हाट? 298 केल्विन। व्हाट विल बी द आंसर? ये देखो यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो फाइनली व्हाट विल गेट हियर? प्लस 238.6 अपॉन 298 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है अपने को? जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, दिस इज इन व्हाट? किलो जूल, राइट है। तो किलो जूल को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू 1000, राइट। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या मिलेगा अपने को? 238600। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो आफ्टर डिवीजन वी गेट व्हाट? क्या मिलेगा? तो 8 टाइम समथिंग जाएगा ये। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं इसका। 238600 एंड 298 अप्रोक्सीमेट 800 आ रहा है ये। ठीक है, 800 के आसपास आ रहा है। दैट इज व्हाट? 800 जूल पर केल्विन। अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं इसको, जूल पर केल्विन। ये डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया। अब डेल्टा एस टोटल क्या होता है बेटा? यहाँ पे डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम दिया है यहाँ पे। डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस इज वेयर? दिस वन, दैट इज व्हाट? प्लस 36.7 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना? 800। तो व्हाट विल गेट हियर? 836.7 जूल पर केल्विन। दिस इज आवर आंसर। और ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू पॉजिटिव, मीन्स रिएक्शन या प्रोसेस इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस।
समझ में आया ये? गॉट इट? यस सर। वेरी गुड। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। नोट डाउन दिस पार्ट। चलिए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे मीथेन गैस प्लस H2 गैस will give here should be what C2H4, huh? It will give what C2H6 gas. इसके लिए Kp दिया है बेटा यहाँ पे, Kp is equal to 3.356 into 10⁻17 ये वैल्यू दिया है। कैलकुलेट डेल्टा G नॉट for the reaction at 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको सोल्यूशन निकालते हैं, इसका क्या करना है, कैसे करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा G नॉट एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 का मतलब होता है 298। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे? तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, दैट इज व्हाट डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log to the base 10 Kp। यही तो था। R की वैल्यू फिक्स होती है, R इज इक्वल टू व्हाट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट है। T कितना हो गया बेटा यहाँ पे 298, 25 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज व्हाट 298 Kp दिया है यहाँ पे। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट विल गेट हियर -2.303 into 8.314 into 298, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, log to the base 10 3.36 into 10⁻17। इसी को सॉल्व करना है अपने को। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ। यहाँ पे 303 इंटू 314 इंटू 298। यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा इसको, ये रेज टू पावर 17 इसको हम लोग बाहर ले लिया, 17 इंटू इसका देखेंगे, इसका कैसा लॉग देखेंगे, लॉग 33 का 6 में, द लॉग 33 इन द 6, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 0. ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा लॉग का वैल्यू कहाँ पे देखूं, है क्या किसी के पास लॉग का? नहीं है।
देखते हैं लॉग लॉग 3.36 हाँ 0.52 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर लेंगे यहाँ पे। तो फाइनली ये जो टोटल होगा 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पे। देखो इसको इसको बाहर ले लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17.526 ये आ गया वैल्यू। अब ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसको कर सकते हो। थ्री जीरो थ्री टू 526। ओके, ये वैल्यू आ गई आपकी ये 0.7, इसको अप्रोक्सीमेट जूल पर मोल। अब इसको किलो जूल में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे इसको, राइट। तो ये हट जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 किलो जूल पर मोल। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल आप आराम से कर सकते हो, राइट।
Okay, so all of you solve all question related to textbook, huh? And send me in PDF. Are you hear me? सब लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसको आप सॉल्व करो और मुझे भेज दो PDF बना के अच्छे से, राइट? कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट सारे क्वेश्चन एमसीक्यू से लेकर के 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स न्यूमेरिकल इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, राइट, बिफोर माय नेक्स्ट लेक्चर। आर यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, before my next lecture you have to complete this full part, right? Thermodynamic, all questions from your textbook. Okay, chaliye. So now this thermodynamic chapter is what over. अब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई विल स्टार्ट दिस व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, so let's start this electrochemistry. यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, या चलेगा, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेता हूँ कम से कम। माय नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इस चैप्टर का भी अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है, 5 to 7 मार्क्स होगा इसका, 6 मार्क्स तक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? सो वी नो दैट energy neither created nor destroyed, already we have studied in your thermodynamic chapter. So in this chapter we will discuss about the electrical energy and chemical energy, their relation. Means chemical energy sorry, chemical energy can convert to electrical energy, and electrical energy can convert to the chemical energy. Interconvertible है, so these energy can be interconvert to each other, chemical to electrical, electrical to chemical. और इस conversion पे क्या क्या factor affect करते हैं, we will discuss in the electrochemistry. So we can say that this is the branch of physical chemistry in which discuss the interconvertibility of this chemical energy and the electric energy and factor affecting on these. That will come under this electrochemistry, right? In electrochemistry, here we have to discuss about the electrolyte and non-electrolyte. What is electrolyte? Electrolyte means what? Yes, yes, full question, full. अब डिलेटेड चाहिए तो बाद में करो, उसको सेपरेटली करो, बट आपको करना पड़ेगा, करके रखो इसको एक साथ। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट मींस व्हाट? व्हिच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइट्स dissociate into the ions in their solution which allow to pass the electricity. Electrolytes हो गए, और जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंडक्टर। इन्हीं को क्या कहते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर दो टाइप्स के हो सकते हैं,
कौन कौन से कंडक्टर हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जरा समझ लो इसको, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स इन द सेंस व्हाट? First I'm writing the example, then you can understand, like that copper metal, silver, gold, aluminum, etc. And electrolytic conductor means what? We can take this aqueous, NaOH, aqueous CuSO4, etc. Now you can observe this. In this case, when we take this sheet of this metal, so here electricity pass from one end to other end. Due to the migration of electrons, electron directly can move from one place to the other place. So conduction takes place because of the migration of electron. Conduction takes place because of the migration of what? Electron, movement of electron directly. But here in this case, conduction takes place because of the movement of what? Ions. NaCl ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है NaCl. You can take this NaCl also. Then you can better understand salt NaCl. So here conduction takes place due to migration of electron, and here due to migration of ions towards opposite electrode, right? NaCl plus Na plus or Cl minus means what? Na plus will move towards what? Negative electrode, and Cl minus move towards what? Positive electrode. So on that basis, its conduction takes place. Here, no change in the material. Remains unchanged. But यहाँ पे material change हो जाएगा. NaCl will convert to the sodium metal and chlorine gas. Matter change. Here, with increasing temperature, resistance increases, conduction decreases. आपको पता है कोई वायर है, अगर ज्यादा हीट हो गया तो वहां पे कंडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो. यहाँ पे वाइस वर्सा अपोजिट हो जाएगा. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर conduction increases, huh? Increases, resistance decreases, opposite हो जाएगा इसका. So this is the electrolytic, otherwise ionic conduction, and this is what? Electronic conduction. Two types of the conductor here. Normally it is what? Metals, and it is what? Salts, aqueous salt, right? अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी व्हाट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अदरवाइज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस व्हाट? कंप्लीटली डिसोसिएट. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मींस व्हाट? पार्शियली डिसोसिएट. आपको चीज समझ में आ रही है? ये अपने इक्विलिब्रियम में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन
electrical conductance of solution. This is important part which I am going to explain it. Electrical conductance of solution. चलिए देखते हैं. ये आप नोट डाउन कर लो एक बार. Have done बेटा? Yes. चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन. Electrical conductance of solution. Electrical conductance of solution. ठीक है. So according to Ohm's law, according to Ohm's law, R is equal to V by R. ये आपको पता है. ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका बेटा? वोल्ट राइट अपॉन एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर राइट ना. और इसी को बोलते हैं ओम. राइट है. इसी को तो बोलते हैं हम लोग ओम. वोल्ट पर एम्पियर और ओम. सो वोल्ट पर एम्पियर, सॉरी, वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू व्हाट? ओम. ठीक है, यही होता है. अच्छा, अब यहाँ पे जरा एक पॉइंट देखो. यहाँ पे पॉइंट इज व्हाट? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G of solution is reciprocal of resistance. रेजिस्टेंस कैसा? G is equal to 1 by R. राइट.
अब देखो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ जी इज, क्या बोलते हैं इसको, साइमेंस। एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, राइट ना, एंड इट इज इक्वल टू, जो साइमन होता है दैट इज व्हाट, इक्वल टू व्हाट, पर ओम। अब समझो यहां से ना, पर ओम, 1/r ना, r का क्या होता है ओम, तो यहाँ पे 1/r मीन्स व्हाट, पर ओम मीन्स व्हाट, साइमन, दैट इज व्हाट एस। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं एम्पियर पर वोल्ट, इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा से यहाँ पे, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of conductor is proportional to length L, ठीक है, and inversely proportional to cross section area। ये ठीक है, 10, इसका मतलब क्या हो गया, R is directly proportional to L but inversely proportional to A। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितना ज्यादा होगा जय राइट, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या फिर इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दैट इज व्हाट, R इज इक्वल टू रो L by A, where rho is equal to what, रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, proportional constant and it is called what, resistivity, right, resistivity। so therefore resistivity is equal to क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, R A by L, राइट है। so ऐसा यूनिट क्या होगा यहाँ पे, यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी इक्वल टू व्हाट, आर का क्या होगा यहाँ पे, ओम होगा, ए का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या समझा आपको, यस चीजें समझ में आ रही है आपको, Yes, sir. गुड। अब थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, जैसे इसको हमने किया वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कंडक्टिविटी। ठीक है,
कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं स्मॉल के। ये कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? A क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका वाइस वर्सा होगा, अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाएगा R का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल length L. So on that basis we can say that capital G is directly proportional to A and inversely proportional to L. और proportional constant लेंगे, that is what K A by L, where K is equal to what? Conductivity. So therefore we can say that conductivity K is equal to what? Capital G into L by A, और K is equal to what? G की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 by R, L by A. इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ऐसा यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? पर ओम पर मीटर। देखो यहाँ पे मीटर है, मीटर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, पर मीटर बचेगा। पर ओम पर मीटर, राइट? या इसी को हम तो साइमन बोलते हैं, एस पर मीटर हो जाएगा, राइट? चीजें आ रही समझ में आपको? यस सर। ठीक है, सर और एक बार रिपीट करो ना। चलिए करता हूं। देखो यहाँ पे ये सारी चीजों को मैं एक साथ इंक्लूड करता हूँ, जरा ध्यान से समझना इसको। मैं फिर से इंक्लूड करता हूँ, जरा ध्यान से समझो। हाँ, थोड़ी सी चीजें इसमें फिजिक्स की हैं, बट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, देखो जरा समझो इसको। मैं यहां से पूरा कंक्लूड करता हूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ओम का जो नियम है, दैट इज व्हाट? वेरी सिंपल, R इज इक्वल टू V बाई R, V बाई I। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? V अपॉन I। तो V अपॉन I से इसका यूनिट जो आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा? V होता है वोल्ट, I होता है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसी को बोलते हैं ओम। वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड व्हाट? ओम। अच्छा, कंडक्टेंस जो होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सपोज एक मैंने वायर ले लिया, इस वायर का जो कंडक्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? या फिर मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं ये पॉइंट का, G इज इक्वल टू 1 बाई R। G जो है वो कैपिटल G, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस जितना कम होगा, कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा इसमें, कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। So on that basis we can say that capital G electrical conductance is equal to 1 by R। इस हिसाब से इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1 by R। R का यूनिट क्या होता है? ओम। तो वी कैन से दैट व्हाट? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम, राइट? या पर ओम को ही बोलते हैं हम लोग साइमन, एस से डिनोट करते हैं इसको।
या जो पर ओम होता है यही क्या हो जाएगा, एम्पियर पर वोल्ट। भाई ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, तो पर ओम इज इक्वल टू व्हाट, एम्पियर पर वोल्ट। ये भी उल्टा हो गया, ये यूनिट की बात है। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि जरा देखो यहां पे, अगर लेंथ इसका मैंने बहुत बढ़ा दिया, इतने एरिया का मैंने लेंथ बढ़ा दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, पतला हो गया। और ये जितना पतला हो गया उसमें रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, इसका विड्थ बढ़ गया, इसका यहां पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। So on that basis, R is directly proportional to L and inversely proportional to A. L is the length of this conductor and A is what, cross section area. Proportional आएंगे तो यहाँ पे रो आता है, that is called what, conductivity, resistivity. तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, ये उल्टा हो जाएगा A by L. A होता है बेटा मीटर स्क्वायर, ए जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको वही तो बोलते हैं मीटर स्क्वायर, और लेंथ को क्या बोलते हैं, मीटर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो एक मीटर से कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे मीटर। तो व्हाट इज द यूनिट, ओम मीटर। आर इज व्हाट, ओम, यहाँ पे क्या आ गया मीटर, दैट इज व्हाट, ओम मीटर। ऐसा यूनिट। सीजीएस में लेंगे ओम सेंटीमीटर। अब कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है, अब जरा को रेजिस्टेंस की बात की, अब कंडक्टेंस की बात करेंगे। कंडक्टेंस किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे कंडक्टेंस ज्यादा होगा। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा, कंडक्टेंस उतना कम होगा। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट कैपिटल G इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो कैपिटल G इज इक्वल टू व्हाट, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, दैट इज व्हाट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K, A by L, and K is called what, conductivity. So on that basis conductivity is equal to what, capital G L by A. अब G is equal to, यहाँ पे देख रहे हो ना 1 by A 1 by R होता है, तो G की जगह मैंने लिख दिया 1 by R। तो K is equal to conductivity is equal to क्या हो गया, 1 by R into L by A। So 1 by R का यूनिट क्या हो गया, पर ओम, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो गया, पर मीटर बचा, तो दैट इज व्हाट, पर ओम पर मीटर। अदरवाइज पर ओम को ही बोलते हैं हम लोग साइमेन, तो साइमेन पर मीटर। समझ में आया अभी? समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड, नोट डाउन कर लो अभी सब। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया है, मैं बना देता हूं आपको, देखिए। क्वांटिटी, SI यूनिट, कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट। SI यूनिट अगर मैंने ले लिया लेंथ, क्वांटिटी क्या है, लेंथ। SI यूनिट क्या होता है, मीटर, और कॉमन यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। अगर मैंने ले लिया एरिया, so here is what, meter square, centimeter square. If I'm taking resistance, then we get what, ohm, and here is what, ohm, both condition ohm. Resistance, conductivity, that is what, per ohm per meter, otherwise Simon per meter, and here is what,
पर ओम पर सेंटीमीटर, ये कंडीशन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, आप समझ सकते हैं। लेंथ इज व्हाट एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इज व्हाट ए, रेजिस्टेंस इज व्हाट आर, कंडक्टिविटी इज व्हाट के। नोट डाउन कर लो बेटा यहाँ पे। देन आई विल एक्सप्लेन मोलार कंडक्टिविटी। अच्छा, अब इसमें के और आर का अगर रिलेशन बताओ तो क्या मिलेगा अपने को? के का, कंडक्टिविटी का और रो का रिलेशन क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे जरा सा समझ लो यहाँ पे। देखो के इज इक्वल टू क्या बेटा यहाँ पे, ये वैल्यू है, और रो इज इक्वल टू क्या यहाँ पे, ये वैल्यू है। तो क्या एक दूसरे के अपोजिट है? तो हम यहाँ पे मिला के दोनों को बोल सकते हैं देयर फोर के इज इक्वल टू व्हाट, 1/रो। इसको और इसको आप देखो यहाँ पे, इसको आप कंसीडर कर लो ना, इक्वेशन कंसीडर कर लो ना यहाँ पे, इसको और इसको, ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो विल गेट दिस वन। आपको देख के लग रहा होगा, राइट? चलिए, इन सारी चीजों को मैं भी पीपीटी से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? जरा अच्छे से आप समझ लो इसको। देन आई विल एक्सप्लेन मोलार कंडक्टिविटी रिलेशन। ओके, डन। ओके बेटा, वेरी गुड।